This conference will now be recorded. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया. So I hope everything is going fine. So let's start with a new topic, alkenes. हमने खत्म किया अभी alkanes. The agenda is to start with alkenes. I know आपके ऊपर काफी बर्डन होता है, but anyway थोड़ा थोड़ा करके करते भी रहना चाहिए, है ना? Alkenes, carbon carbon double bond. Alkenes are unsaturated hydrocarbons having carbon carbon double bond. Maybe one हो सकता है and maybe two हो सकते हैं and two और इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं. These are also known as olefins, means oil forming. Even आप जो घर में हम refined oil use करते हैं, those contains alkenes, olefins. जबकि जो alkanes थे उनको paraffins बोला जाता है. Para मतलब less reactive. These would be very reactive. You remember by this time ethylene, common name है. Propylene, ब्यूटाइलीन, 4 कार्बन, डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है. दिस इज 2 ब्यूटाइलीन, दिस इज पेंटाइलीन एंड सो ऑन द केस. सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर एक मिथाइल लगा हो, आइसोब्यूटाइलीन. कॉमन नेम्स. नॉर्मली बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं इथाइलीन पे. यू मस्ट नो दैट. IUPAC system we have done sufficient. डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है. You can call it prop 1 in or 1 normally skip हो सकता है. No problem. But 1 in or butene. डबल बॉन्ड को छोटा नंबर रखना है. But 2 in. Double bond gets preference over methyl. So this is 4 methyl pent 2 in. You should give preference to the double bond. Similarly, this is going to be 2 hex 2 in. 3 पे 4 पे 5 पे 3 दफा trimethyl hexene. Even if the chain is going to be violated, double bond वाली कार्बन को छोटा नंबर देना है. This is going to be 2 पे बच्चों ethyl pent 2 in. Sufficient time has been devoted to this. But 1 3 diene. हमने बोला बेशक लॉन्गेस्ट चेन रूल वायलेट होता है. You have to take that chain which includes the maximum double bond. So this is going to be 3 पे प्रोपाइल लगा है. पेंट कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करने के लिए वॉवल डाइन. You should do this as a homework. I'm giving this question as a homework. This is an NCERT problem. As you know, solutions have been provided, but you must solve yourself. You remember cis double bond के दोनों same side पे, and you remember trans double bond के opposite side पे, and which will have higher boiling point. The cis is going to be more polar. Trans is going to be less polar. So which has more boiling point? The cis is going to have more boiling point. Please, must be done. That's your homework. Why this is homework? Because it has been discussed many number of times, but you are going to do all of these questions, right? Z and E are not in your CBSE syllabus. ये +2 में आता है बेटे. तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, इसको समय आने पे डिस्कस करूंगा. Right now I'm not discussing this thing. One more topic again बच्चों, this is not in your school syllabus but you should do that. The relative stability of alkenes can be determined comparing their enthalpy of hydrogenation. What is enthalpy of hydrogenation? Addition of hydrogen. आप रिएक्शन भी देख चुके हैं. एल्कीन में अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं
तो that is reduction or hydrogenation. Enthalpy of hydrogenation is the heat evolved when 1 mole of alkene react with hydrogen. For example, this is cis-butene, this is trans-butene. अगर आप दोनों में हाइड्रोजन ऐड करो, you are going to get butane. You are going to get butane. ध्यान से देखो, बेशक इसको देख लो या उसको देख लो. What is going to happen? One pi bond is going to be broken, and two sigma bond, carbon hydrogen, एक इस तरफ, are going to be formed. This is a weaker bond. Sigma bond is a stronger bond. So now bond broken में energy is breaking में needed, and bond formation में energy is released. So you know, stronger bond वो भी दो बनने हैं और weaker bond टूटना है, तो delta H hydrogenation is always going to be negative, that is exothermic होने वाला है. बेशक ट्रांस से चलो या सिस से चलो, पहली बात जो आपको बता रहा हूं, heat of hydrogenation is always going to be negative. Now you remember Zetsef rule, hyperconjugation. Cis is going to be less stable. अगली बारी LS लिखूंगा. Trans is going to be more stable. How? Alpha hydrogen check करना. Refer Zetsef rule. तो अगर heat of hydrogenation कम है, तो आप इधर से इधर आए, this will be minus. इधर से इधर आए, this is minus. Now this is more stable, तो heat of hydrogenation of more stable alkene will be lesser. The trans isomer याद करने की जरूरत नहीं है, 5 बस ये रखना, has lesser energy than cis isomer. Therefore, the trans isomer more stable has lesser delta H hydrogenation as compared to cis. In other words, you can say the more stable the alkene, the lesser is going to be the heat of hydrogenation. That I have discussed. Cis के अंदर steric hindrance ज्यादा है, trans के अंदर steric hindrance less है. So this is going to be more and this is going to be बच्चों the less stable. Now this is 5 carbon वाली, 1 2 3 4. Let us count number of alpha hydrogens. यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 और 2 5 हैं, यहाँ पे 6 और 9 है, यहाँ पे 12 alpha hydrogen. Right? Practically, I'm taking the similar number of carbon atoms. I can say similar number of carbon atoms. Right? तो although यहाँ पे मैं hexene दे सकता था, but in any case, can I say as the number of alpha hydrogen R group increases, right? What is going to happen? The stability of alkene is going to decrease. Zetsef rule. The more substituted the alkene, the more is going to be the stability of alkene. Now, bachcho, which is going to be more stable? This is going to be more stable. Notice, इसकी heat of hydrogenation सबसे कम है. And this is going to be least stable. इसकी heat of hydrogenation is going to be सबसे क्या है? ज़्यादा है. The more stable the alkene, the more is, the lesser is going to be heat of hydrogenation. आपके स्कूल एंगल से ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा, but I have done it. You should know that because सिर्फ स्कूल एंगल से ही नहीं हम देखते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग एंगल से कहीं आगे भी हमें देखना पड़ता है बच्चों. So remember, I repeat, the more stable the alkene, the lesser the heat of hydrogenation. You understand what is going to be the next topic? Method of preparation for alkenes. MOP alkenes की हम डिस्कस करने जा रहे हैं. One method you
already know that. You remember Lindlar catalyst? अगर आपके पास but2YNE है, अगर आप इसके ऊपर लिंडलार कैटलिस्ट डालते हो, सिस फॉर सी, सिस फॉर कैटलिस्ट, याद करने का तरीका था। और सोडियम लिक्विड अमोनिया या लिथियम लिक्विड अमोनिया से आपको ट्रांसब्यूटाडीन बोलते हैं। सोडियम लिक्विड अमोनिया जब आप यूज करते हैं उसको बिर्च रिडक्शन बोलते हैं, राइट? Remember that has been discussed in the chemical properties of alkynes कह सकते हो, alkene कह सकते हो, या method of preparation for alkanes बोल सकते हो। उसमें हमने ये पहले डिस्कस किया था, that is the repetition, जो भी आपको पिछले पेज पे कहा गया है। तो remember, ऊपर वाले केस में सिस और ट्रांस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैंने अगर पैलेडियम कार्बन बेरियम सल्फेट भी यूज कर सकते थे, वी हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, उसको भी लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। दैट इज गोइंग टू गिव यू सिस एंड सोडियम लिक्विड अमोनिया ट्रांस हमें अल्कीन देने वाला है। बच्चों, दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट्स मूव अहेड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्कीन्स। द सेकंड मेथड फ्रॉम alkyl halides or haloalkenes. Alkenes can be prepared from alkyl halide, usually bromide or iodide. Why? Bond आसानी से टूटता है। By heating with alcoholic potash. What is alcoholic potash? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, KOH ALC dot. ALC dot alcohol को रिप्रेजेंट करता है, potassium hydroxide dissolved in ethanol. This reaction removes a molecule of halogen acid and therefore the reaction is known as dehydrohalogenation. Watch first reaction. 1 carbon 2 carbon. जिस कार्बन पे हैलोजन है उससे अगले से हाइड्रोजन गया, जिस कार्बन पे हैलोजन है उससे अगले कार्बन पे द हाइड्रोजन गया, प्रोपीन एंड ईथीन। You also call it अल्फा से अगली कार्बन बीटा elimination. Beta elimination because hydrogen atom is lost from beta carbon. From beta carbon. देखो बच्चों कैसे लिख रहा हूं इसको, देखो CH2 CH2 HCl. This is alpha carbon, this is beta carbon. आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, KOH alcoholic CH2 CH2. No need to write KCl and water. You can write, पहचानो, ऐसा हो या ऐसा हो, दोनों के ऊपर if you are going to put KOH alcoholic लिखना जरूरी है, तो आपको सेम प्रोडक्ट प्रोपीन मिल जाएगा। This is going to be known as beta elimination. The beta elimination. Please ध्यान दीजिएगा। What is going to happen? Mechanism ऐसा है बच्चों, X लगा लेता हूं ऐसा। The base OH negative. Remember, बेस का काम प्रोटॉन को निकालने का है, अब्स्ट्रैक्ट करने का है, उखाड़ने का है, खींचने का है। So this is going to be electronegative. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ये कार्बन खींचेगा। This hydrogen can be removed by OH negative. OH negative डाला, बाहर क्या आ गया? वाटर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां गया वो इलेक्ट्रॉन इसको चला गया और ये X नेगेटिव बाहर भाग गया। माइनस X नेगेटिव आपको क्या मिल गया? द डबल बॉन्ड H and H is going to be obtained. अब जो K प्लस था वो Cl नेगेटिव के साथ मिलके KX बना देगा। Do you understand? Remember, the hydrogen atom is eliminated from beta carbon atom. Therefore, this is known as beta elimination.
कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज द वीकेस्ट, तो रिएक्शन फास्टेस्ट होगा। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन है तो आना ही नहीं। फॉर अल्काइल ग्रुप, द मोर स्टेबल द alkene, the faster is going to be rate of reaction. For example, reaction A देखो और reaction B देखो। अगर मैं इसके ऊपर KOH यूज करता तो बच्चों आपको ये ना मिल जाता। अगर मैं इसको A डैश और इसको B डैश बोलूंगा तो B डैश इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। व्हाई? अल्फा हाइड्रोजन चेक करो 6 में, ऊपर वाले में 3 में। तो more stable the alkene, the more stable the product, the faster is going to be the rate of reaction. So this carbon is 2 degree, this carbon is 1 degree, और this carbon is, I'm sorry, मैंने गलती कर दी, 3 degree, ऊपर वाला is 1 degree। तो कौन आसानी से तेजी से भागेगा बच्चों? You understand what? ये दोनों चीजें आपको जो बताई जा रही हैं, that is going to be important. Please do not forget. That is quite important है, बोलने का नहीं है। Now, one thing more. If more than one alkene is possible, आप तीसरी मंजिल से पहली पे छलांग मार सकते हो या दूसरी पे मार सकते हो। Two possibility. Then the more substituted, more alpha hydrogen alkene is going to be major. This is known as ZSEP, or say it is a product. जैसे मार्कोनी ऑफ एडिशन था, so this is going to be Russian scientist. So ZSEP rule. The more substituted alkene is going to be major. आप तीसरी मंजिल से you can jump to second floor or the first floor. Where will you get more stable product? More stability कहाँ पे आएगी? फर्स्ट के ऊपर। तो आप कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? आपकी आंखों के सामने एक स्लाइड है, ध्यान से देखिए। एक ऑप्शन मैं यहां से हाइड्रोजन और ये निकालता हूं तो मुझे ऊपर वाला प्रोडक्ट मिल जाता है, राइट? इसमें अल्फा हाइड्रोजन इज 2। एक ऑप्शन बच्चों मैं यहां से हाइड्रोजन निकालता हूं तो मुझे यहां पे ब्यूटूइन 6 अल्फा हाइड्रोजन, ऊपर वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन, नीचे वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन। ऊपर वाला इज लेस स्टेबल, नीचे वाला इज मोर स्टेबल। Which will be formed more stable, more formed. This one is known as what? The Z7 product. And जो less substituted है उसको Hoffman's product बोला जाता है। I repeat, the more substituted product is known as Z7 product. रशियन में स, ज, जर्मन में स, ज एक प्रकार से होता है। हम स बोलते हैं, वो ज बोलते हैं। हम सैटर्न बोलते हैं, वो ज़ाटून बोलते हैं। तो ऐसा बोला जाता है। The more stable the alkene, the more it is formed. Which will be more stable alkene? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। But I have written. सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है। अब मानो ये है बेटे, तो एक ऑप्शन आप यहां से, सॉरी जस्ट अ मिनट, एक ऑप्शन आप यहां से HOBr ले सकते थे। यहां पे आपको एक अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। नाउ वॉच इट। आप ये भी तो कर सकते थे बच्चों, एक मिनट, आप यहां से भी तो H ले सकते थे। तो आपको 3, 6 और 9 अल्फा हाइड्रोजन, which is going to be major product। ऊपर वाला उसको क्या बोलोगे? Z7 product। More substituted product is known as Z7 product। और नीचे वाला is less alkylated, less alpha hydrogen, so that is going to be minor। सुनो, आपको सिर्फ मेजर प्रोडक्ट की चिंता करनी है। ऑल्दो जब मैं आपको समझा रहा हूं, आई कैन आस्क, दूसरे वाले को भी मैं पूछ सकता हूं। डू यू अंडरस्टैंड? दोबारा देखो। अब आप
बताइएगा। ये मैं एक प्रोडक्ट लिख रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा बेटा, सब 2 मिनट रुकिएगा, कुछ काम है अभी 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 अभी, राइट। और 2 मिनट रुकिएगा प्लीज। ये और ये, अगर मैं यहाँ पे क्लोरो लगा दूं, सुनो, ये वाला भी तो बीटा, यहाँ पे भी तो आ सकता है, समझा? यू अंडरस्टैंड? ये वाला भी तो बीटा, ये और ये तो सेम ही है, तो इधर भी आ सकता है, समझा? एक आप कह सकते हैं मैंने खुशी खुशी में ज्यादा बना दिया है, ये इसको गायब कर देता हूँ, ठीक है? नाउ यू नो, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे CH2 है, 7 अल्फा हाइड्रोजन, which is going to be more stable, which is going to be less stable. इसको कौन सा प्रोडक्ट बोलोगे? Z से प्रोडक्ट। ऊपर वाले को क्या बोलोगे? द हॉफमैन प्रोडक्ट। That is going to happen. Do you understand how it is happening? What is happening? One more thing. How many of you remember carbocations stability? 1 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री से ज्यादा, 3 डिग्री से ज्यादा बेंजाइल, बेंजाइल में रेजोनेंस होती थी, बेंजाइल और एलाइलिक, द स्टेबिलिटी इंक्रीज। बच्चों, आप एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में से निकलने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में से। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कार्बोकेटाइंस जहां भी बनते हैं, शो रीअरेंजमेंट। व्हाई कार्बोकेटाइन? अभी बताता हूं, मैकेनिज्म में आपको लेके जाना है। दे कैन शो रीअरेंजमेंट 1 to हाइड्राइड शिफ्ट और 1 to मिथाइल शिफ्ट। क्यों होगा? क्योंकि ऐसा करने से मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, और रिंग एक्सपेंशन ऐसा करने से मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनने वाला है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सुनो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ये काम आने वाला है। मैं इसको थोड़ा सा आगे ले गया हूं बेटे। आपको प्रोडक्ट तो पता है, हम मेजर ही लिख रहे हैं। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, आई एम सॉरी 4th कार्बन। अगर आपको जो मैंने अभी सिखाया था, तो आपके मुताबिक द प्रोडक्ट should be this. This is expected, but नीचे वाला is the actual. Why? For this, we have to go into the mechanism. यहाँ पे पहले स्टेप में हमारे पास the chloride ion is lost. We get, कुछ कारण है बेटे, the 1 degree carbocation. This is going to move out in anticipation of the product. Now, मेरी बात को पत्थर पे लकीर मानना, जब भी कार्बोकेटाइन देखो, लेफ्ट और राइट देखो। इट इज समथिंग लाइक मैं आपको गाड़ी चलाने सिखा रहा हूँ। जब भी ट्रैफिक लाइट आए तो पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर सेंटर देखो और तब आगे बढ़ो। आपने लेफ्ट और राइट देखना है। अगर आप पहली स्टेज पे वहां से हाइड्रोजन आयन विद इट्स इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हो,
तो कर दीजिए। हाइड्राइड आयन, इंग्लिश वर्ड, एक कार्बन से दूसरी कार्बन पे कार्बन अपने हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट हुआ, नॉमेनक्लेचर भी नहीं, एक से दूसरी कार्बन पे। तो व्हाट विल हैपन, सेकंड कार्बन से अब हाइड्राइड आयन गया, तो इजंट इट अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, दिस इज 2 डिग्री। कुदरत ऐसा करती है, आई एम नॉट क्रिएटिंग। 1 डिग्री कार्बोकेटायन से 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। नाउ बच्चों प्लीज वॉच, एक सेकंड दीजिएगा, कुछ करना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन दोबारा लगा रहा हूं। आप ये हाइड्रोजन देख रहे हो, नाउ द H प्लस मूव्स आउट, माइनस H प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट, वी आर सपोज टू फॉर्म ओनली द मेजर प्रोडक्ट, दैट इज इट। हम ऐसे शिफ्ट किए। हमने क्या सिखाया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों हुआ, बिकॉज 1 डिग्री कार्बोकेटायन के मुकाबले 2 डिग्री कार्बोकेटायन आर गोइंग टू बी मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी की तरफ ये दुनिया जाती है। नाउ वॉच दिस, आप तो उम्मीद कर रहे थे यहां पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सिर्फ आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने तो यहाँ पे अजीबोगरीब प्रोडक्ट बनाया हुआ है, देखते हैं पहली स्टेज में क्या होगा। हेलाइड आयन, मुझे कैसे पता, मैंने रिसर्च पढ़ी थी। कहां से पढ़ी थी, किसी ने लेबोरेटरी में किया होगा। तो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही होता है। आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। मैंने क्या बोला, कार्बोकेटायन लेफ्ट और राइट की तरफ देखो। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट करता तो पॉजिटिव चार्ज इधर आता, वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता, नहीं होगा। यहां पे मिथाइल शिफ्ट होगी इलेक्ट्रॉन के साथ, और ऐसा करने से आप लोगों को यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज नजर आना शुरू हो गया। You understand? What is the benefit? 3 degree calculated. Now, this hydrogen is lost as a proton. ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिला गया, आपको ये प्रोडक्ट हुआ। What did I tell you? Carbocations show rearrangement. Don't memorize it. Understand it. Leave it. You should know किस पेज पे बैठा है। क्वेश्चन आने पे वापस आना सदा के लिए सीखोगे। Do you understand the same thing which I have done? वही चीज यहाँ पे भी लिखी है बच्चों। The same thing. This is a 2 degree carbocation. This is a 3 degree carbocation. 3 degree is more stable as compared to 2 degree, which is less stable, and hence this happens. No need to write the minor products. Worry about the major product. See, one more concept. The stability of ring, right? 6 कार्बन इस सबसे ज्यादा स्टेबल है, 5 कार्बन लेस स्टेबल है, and this is going to be least stable पाई गई है। This is going to be most stable. तो जरूरत पड़ने पे 4 से 5 या 5 से 6 कार्बन की तरफ रिंग एक्सपैंड कर सकती है। देखते हैं कैसे हुआ, समझो बेटे, आपके लिए मैंने आंसर आगे भी रखा हुआ है। अब देखो केवल अल्कोहलिक, आप तो समझ पा रहे होंगे क्या होगा। पहली स्टेज में बड़ी बार हो गया, क्लोराइड आयन का लॉस होगा। आपको रिंग से आगे आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नजर आना शुरू हो गया। जब भी 4 से आगे 5 से आगे आपको ऐसा सिचुएशन देखे, रिंग एक्सपेंशन होगी। सुनो, नई चीज सीख रहे हो। नाउ
आपको समझाने के लिए मैंने इसको नंबरिंग कर दिया। दूसरी कार्बन से 5 पे इलेक्ट्रॉन गया और वो पहली को मिल गया, तो 2 बेचारे का 1 इलेक्ट्रॉन मारा गया। 5 कार्बन की चेन नहीं नजर आ रही, ऐसा कर देते हैं। ऐसे ही बेटे इसकी नंबरिंग कर देता हूं। 2 के ऊपर क्या नजर आ रहा है? पॉजिटिव। और 1 के ऊपर क्या नजर आ रहा है? methyl. This is a 2-degree carbocation. Don't forget we have an hydrogen here. कार्बोकेटायन रिंग एक्सपेंशन तो हुई हुई है। अब की बार यहां पे भाई साहब क्या होगा? एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट 2D. Oh, I'm sorry, 3D. Now there is alpha hydrogen here. और यहां पे भी एक ही चीज है, दोनों को जिसको मर्जी कर दो एक ही प्रोडक्ट होगा। This hydrogen goes out and you are going to get this product. नई चीज है, समय लगाओ, फायदा होगा, रिपीट करो, मस्ट डू इट, फायदा होगा, सीखोगे। सेम थिंग, लेट्स डू इट, दिस इज फॉर यू, समझो। पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर और इस कार्बन पे मिल गया, 6 कार्बन की रिंग बन गई। ऐसा पॉजिटिव चार्ज क्या बोलोगे? रिंग एक्सटेंशन। हाइड्राइड शिफ्ट, पॉजिटिव चार्ज और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यू गेट दिस। 5 से 6 मिल गया, 4 से पिछले केस में 5 मेंबर रिंग मिल गया। There exists, my dear friends, no shortcut. Rewind it, do it 10 times, do it 20 times. What did I teach you? Carbocations show rearrangements. That can be 1,2 methyl shift, or that can be ring expansion. कहानी एक ही है कि आप लोगों को ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर लेके जाना है। That is the point here. Continue. From vicinal dihalide. What is vicinal? पड़ोसी। देखो, आप जिंक डाल दीजिए, लेड डाल दीजिए, नोटिस जिंक ये ब्रोमीन निकाल लेगा, इथीन मिल जाएगा। जिंक दोनों से ब्रोमीन निकाल जाएगा, प्रोपीन is going to be formed. The vicinal dihalide give you alkene on reaction with the what? The zinc or even lead can be used. अब मजेदार चीज देखो, this is CH3 Br Br, जिंक डाल देते हैं 2 मोल्स, ये जेमिनल आ गई, Br Br और CH CH3. What will happen? एक ZnBr, एक ZnBr, और आपको असेंडिंग ऑफ सीरीज मिल गया, ब्यूट 2 इन मिल गई है। दिस इज विद द जेमिनल। पिछले वाला किसके साथ था? विसिनल के साथ। दिस इज गोइंग टू हैपन, द प्रोडक्ट इज गोइंग टू चेंजिंग। व्हाट आर वी डूइंग? मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर alkenes. From alcohols, from alcohols, alkenes are prepared from alcohols by heating with protonic acid such as sulfuric acid, phosphoric acid at about 443 Kelvin. This is also known as dehydration elimination reaction. बेटे वैसे ही जैसे पिछली बार हुआ था, पिछली बार हैलोजन और H निकला था, इस बार H and OH नेगेटिव मिलेगा। You can also call it beta elimination. You can also call it dehydration. Either concentrated sulfuric acid or phosphoric acid is going to be used because these are the dehydrating
एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम इनको मानते हैं। एक मिनट बच्चों, कुछ चीज करना है तो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट। सुनो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज वॉच। Alcohol react with sulfuric acid, this is H2SO4, in different way at different temperature। फर्स्ट में आपको वाटर निकला, अल्कोहल में से H, सल्फ्यूरिक एसिड में से OH, you get ethyl hydrogen sulfate at 383 Kelvin। Understood? On increasing temperature 413 Kelvin, same sulfuric acid, we also call it 170 degrees Celsius, 140 degrees Celsius। वाटर निकला intermolecularly, you get ethoxyethane diethyl ether at this temperature। At further high temperature 443 170 degrees Celsius, वाटर निकला, राइट, हीट किया, आपको मिल गया द एल्कीन, द इथीन intramolecularly। We get different product at different temperature। Even phosphoric acid can be used, even anhydrous zinc chloride can be used। The mechanism has to be seen। Notice OH CH3 है, the proton is going to protonate OH, तो ऑक्सीजन अट्रैक्ट हो गया प्रोटॉन की तरफ और उसने पॉजिटिव चार्ज बना लिया। अब ऑक्सीजन परेशान है, मैंने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, तो वो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और आपको मिल जाएगा कार्बोकेटायन माइनस वाटर। नाउ अगले वाला हाइड्रोजन लॉस होगा और आपको मिल जाएगा ये। आप चाहते तो इसको H प्लस और हीट करके भी लिख सकते थे। We do not mention 443 Kelvin, that is what I have done। अब सुनो, यहां पे भी कार्बोकेटायन बना, और कार्बोकेटायन जब भी बना ध्यान से देखना, दे कैन शो रीअरेंजमेंट, वो शिफ्ट भी मार सकते हैं, आपको सोचना हो। डिट्टो सेम जो पीछे देखा था, यू कैन हैव टू ऑप्शन, H इधर से गया तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, अगर H इधर से गया तो वी कैन गिव 2 इन द 6 अल्फा हाइड्रोजन। नीचे वाला is going to be more stable and that is the Z cell product। Whenever more than one alkene is going to be obeyed, is going to be followed, that alkene will be formed which is going to be more stable होता। Now बच्चों, the rate of reaction of alcohol is found to be 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol। दिखाता हूं, just wait। Why? जैसे पीछे हुआ था, this is 1 degree alcohol, एक मिनट बेटे, this is 2 degree, this is 3 degree। If you heat in the presence of sulfuric acid, आप जब एल्कीन बनाओगे ना, तो इट इज अज्यूम कि मैं 443 केल्विन की बात कर रहा हूं बाय डिफॉल्ट। सी 1 डिग्री कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म्ड, 2 डिग्री कार्बोकेटायन समझ पा रहे हो, OH हटाओ, उसकी जगह पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, 3 डिग्री which is going to be more stable, the 3 डिग्री। अब इससे प्रोडक्ट क्या बनता, ये, इससे प्रोडक्ट क्या बनता, ये, और इससे प्रोडक्ट क्या बनता, ये। So which will be reacting fastest? The 3 degree alcohol will be reacting fastest। Even alkyl halide में भी 3 डिग्री ज्यादा फास्ट हुआ था। Why? Because जो उससे
प्रोडक्ट बनेगा वो जितना स्टेबल होगा वो रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा. Reactant is stable, reaction will be slow. The product or intermediate is stable, the reaction will be fast. समझ पा रहे हैं? And the Z-sub rule is going to be obeyed. I have discussed the same thing with you. वही चीज जो मैंने कराई थी, आप एल्कीन कवर कर लेना, राइट? यहाँ पे आपके पास एक सेकेंड बेटे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन. Rate of reaction will go on increasing as you move further. Do you understand the same thing I was talking about here? ठीक, वही जो हमने आपसे बात की थी वही. तो which will be reacting fastest? The 3 degree is going to react बच्चों, the fastest react करने वाला. Elimination same चीज होती है. That is the same thing I have just taught you. वही मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताए थे. पहले में अल्कोहल प्रोटोनेट हो गया, लॉस ऑफ वाटर हुआ, और फिर प्रोटॉन का लॉस हुआ, और आपको क्या मिल गया? द एल्कीन इज गोइंग टू बी फिल्ड. नाउ डियर, remember carbocations show rearrangement. That will be going as a homework to you people. I have done it. You should do it. सब में वही होगा. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो दाएं बाएं देखो. अगर कार्बोकेटाइन की डिग्री बढ़ सकती है, बढ़ा दो बच्चों. अगर आपके पास कार्बन एटम्स रिंग में बढ़ सकते हैं तो बढ़ा दो. सुनो, मैंने तो बोल दिया कि इसको खुद करो, और आपको खुद करना चाहिए. जब तक ना हो तब तक आगे नहीं जाना है. This is going to be an important topic. Kolbe electrolysis has already been discussed with you people. You will see to that. Right, bachcho? And we are into the method of preparation for alkenes. From alkynes, alkyl halides, vicinal and geminal dihalides. From alcohols, Kolbe electrolysis. You should make notes. After you have done this, you should pick your NCERT, right? और उसमें से मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्कीन्स देखने वाले हैं, और वो जरूरी है. उसको बाईपास आप नहीं करने वाले हैं. अगर आप इसको बाईपास करेंगे तो यू पीपल आर गोइंग टू बी इन ट्रबल. फिजिकल प्रॉपर्टीज मस्ट रीड इट. आसान है पर तुम्हें करना है. ये मैं आपको रीड करने वाला है, होमवर्क में दिया है. Melting point, पहले कहा चुका हूँ. Trans alkene have higher melting point than cis because trans fit better, more symmetrical. Cis are going to fit less. Solids का melting point होता है. जितना solids में अच्छी packing होती है तो वो better रहता है. और cis are more polar. इनका जो boiling point है वो ज्यादा होता है. cis का boiling point, trans का melting point. I have discussed this thing already. You should read it once again. Double movement has been discussed with you people. Cis are going to be more polar, trans are going to be less polar. You should go with that. Solubility, alkenes are going to be insoluble water. हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाइड्रोकार्बन पानी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाते. These are oil जैसे हैं, तो ये डिसॉल्व नहीं करते हैं. बट हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर all of them are going to merge, dissolve easily बच्चों. ऑर्गेनिक के अंदर in general organic compound dissolves in organic, inorganic and inorganic. Chemical properties important. इंट्रोड्यूस करते हैं. ऑल्दो आई वांट कि आप थोड़ा थोड़ा करके करें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो बाकी अगले लेसन में करेंगे, बट एक बेस बना लेते हैं.
alkenes are characterized by presence of a double bond this. एक मिनट मुझे दीजिएगा, अपने हाथ से करते हैं, ये मैं आपको पढ़ने के लिए एज अ होमवर्क में देने वाला हूं। तो एल्कीन्स के अंदर ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, जैसे ये पानी की बोतल है, राइट, इसके अंदर पानी किसी भी तरफ जा सकता है। तो सिमिलरली जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पानी की जगह पे पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे भी आ सकते हैं, इस कार्बन पे भी आ सकते हैं। जिसके ऊपर ज्यादा आ गया उसके ऊपर नेगेटिव, जिसके ऊपर कम आ गया उसके ऊपर पॉजिटिव, ऐसा होता है। तो एल्कीन के ऊपर बच्चों हमेशा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज ही अटैक करती है। अब अगर ऐसा होगा, आपको ये डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया और इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया, E फॉर इलेक्ट्रोफाइल बन गया। दिस विल बी द इंटरमीडिएट। एल्कीन्स शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऐसा ही होगा। मतलब अगर आपके पास से डबल बॉन्ड है, राइट, आप इसके ऊपर HCl डाल रहे हैं, एक तरफ H दे दो, एक तरफ Cl डाल दो, बट याद रखना पहले H जाएगा। अभी समझाता हूं, पहले भी करवा चुका हूं मार्कोनिक ऑफ एडिशन। दिस इज गोइंग टू हैपन। Alkenes show electrophilic addition reaction. Alkanes show free radical substitution reaction. लॉक किया जाए, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, उनका स्वभाव है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, मैं इसको एब्रिविएशन क्लास नोट्स में ये बोलूंगा। In these reactions, the attacking reagent is electrophile, that is either positively charged or electron deficient species. The negative center of the electrophilic attack is made available by the high electron density of the double bond of the alkene. Double bond of the alkene. Step 1 में हम करते हैं, देखो जी रेपिटेशन आ रहा है, आपको इफेक्ट्स के अंदर कराया गया था। H प्लस का अटैक है, मैं HBr, HI, वाटर कुछ भी ऐड कर सकता हूं, A प्लस B नेगेटिव। हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। मैं नहीं लिखना चाहता था, बट चलो अब लिख दिया है। दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल। नाउ दूसरी स्टेज में the Br negative will attack and you will get Br here. कर ही देते हैं, जब मेहनत की है। अब इसके ऊपर जब Br नेगेटिव अटैक करेगा तो आपको जो Br है वो यहाँ पे जाएगा। This is less stable, less form. This is going to be minor and this is going to be more stable because इसका जो intermediate था वो more stable था and this is going to be major. You should do that. The same thing I have done it. और याद रखना इंटरमीडिएट जब भी कार्बोकेटायन बनेगा ये तो होना ही होना है, रीअरेंजमेंट दो होने ही होने हैं, राइट। सो wherever the option exists, ऊपर वाले में तो ऑप्शन ही नहीं है, तो H को इधर दे दो, इसको इधर दे दो, बट इसमें ऑप्शन है। नेगेटिव पार्ट goes to the carbon atom where you have lesser number of hydrogen atom, Marconic of addition. याद है ना, इफेक्ट्स के अंदर करवाया था बच्चों। एंड ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। HCl स्लो, HBr ज्यादा, HI ज्यादा, क्योंकि HI बॉन्ड आसानी से टूटेगा एज कंपेयर टू HCl। दोबारा देखो, HF आया ही नहीं। Why? Because HF ना बॉन्ड टूटना ही नहीं। अगर बॉन्ड ही नहीं टूटना है तो रिएक्शन होना ही नहीं है। I hope you remember. The alkenes show electrophilic addition reaction. Carbocation is formed. यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है, राइट एंड लेफ्ट देखो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डोंट डू इट, बट तुम आदत डालो।
then bromide ion will attack and you will get this thing. +2 में जाके chemical kinetics करते हो तो तुम्हें समझ आता है this is slow reaction, this is fast reaction, and the slow reaction is the rate determining step. Hence this is known as electrophilic addition reactions. Right? Markovnikov rule is a repetition. During addition of species like A plus B negative to an unsymmetrical alkene, please refer where I taught you Markovnikov rule. The negative part of the adding species goes to carbon atom which has lesser number of hydrogen atoms. You are expected to write only the major product, although you should know what is happening. Do you understand? This carbon has lesser number of hydrogen atom. तो Br negative वहां गया, सिर्फ मेजर लिखो. This carbon has lesser number of hydrogen atom. तो ये कहां पे गया? इधर गया. और वाटर में भी H plus and OH negative है. ये क्या है? H plus. This is the catalyst, right? Basically, it is addition of water. Do you remember carbocation can show shifts? So अभी तो बात नहीं हुई, but जरूरत पड़ेगी. ये मैंने आपको करा दिया. 2 degree is more stable. This is 1 stable, and hence that is going to be known as which? The Markovnikov rule. Carbocations show rearrangement. वही वाला concept बच्चों, nothing new. वही वाला. Watch it. आप बनाएंगे, मैं सिर्फ समझाऊंगा, बट मैं लिखूंगा नहीं. ये था, यहाँ पे पॉजिटिव दिया, स्टॉप. 2 डिग्री. यहां से अगर हाइड्रोजन आता तो 3 डिग्री आ जाता. अगर मैं यहां से मिथाइल करता तो क्या फायदा होता? वो 2 डिग्री तो रहता. Now this is more stable. Now the Br negative will go here. So this is the actual product. That is a benefit of the mechanism. If you know the mechanism, you will be benefited. Watch it. What I am doing here. See? समझो? पहले तो H plus का अटैक होगा. pH, CH2 positive, CH3. This is 2 degree. अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कर देता हूं, मैंने जानबूझ के उसको ऐसे लिखा इधर से, तो क्या ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन नहीं बन जाता? This is more stable. Now if you remove H plus, बेंजीन से तो निकलना नहीं, you will get CH3. हालांकि प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना था, मैंने वहां से भी वही बना देना था, बट यू शुड नो व्हाट हैज हैपेंड. हाइड्राइड शिफ्ट कैसे हुआ है बच्चों? यू विल डू इट योरसेल्फ. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर Markovnikov rule? That has been discussed many number of times. कर चुका हूं ना, रिवीजन ही किया और कुछ नहीं किया. Markovnikov rule बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. Anti-Markovnikov effect, also known as peroxide effect और खराश इफेक्ट, एक ही चीज. देखते हैं. Addition of HBr, only HBr on an unsymmetrical alkene. याद रखना Markovnikov और anti-Markovnikov is on unsymmetrical alkene only. In presence of organic peroxide, show anti-Markovnikov peroxide or खराश effect. Notice Ma Markovnikov effect. HBr, Br negative has gone here. Now notice a difference in the second, right? Second में
ऑर्गेनिक पेरोक्साइड और पेरोक्साइड आ गया, the Br has gone to the carbon atom which has more number of hydrogen atom. Something different has happened. This is known as the Markovnikov effect. ठीक है जी, एक सेकंड, the Markovnikov or anti-Markovnikov. Remember, only unsymmetrical. You're passing through extremely important point. Unsymmetrical alkenes on reaction with HBr, only HBr, that too in presence of peroxide show AMA. The mechanism now becomes free radical addition in presence of free radical initiator. Dear, हम ध्यान दीजिएगा, important stage में से निकल रहे हैं. What are we showing you? Anti-Markovnikov effect का mechanism. Please notice. Only difference is this has happened. First step, chain initiation happened. This is the peroxide, benzoyl peroxide. Oxygen-oxygen bond breaks homolytically, producing free radical character. Write this. This free radical, benzoyl free radical, abstract hydrogen atom, producing Br free radical. क्या कर रहे हैं हम? AMA. कौन सा स्टेप हुआ है? चेन इनिशिएशन हुआ है और इसमें क्या प्रोड्यूस कर दिया है? द ब्रोमीन फ्री रेडिकल. नाउ द ब्रोमीन फ्री रेडिकल हैज टू ऑप्शंस. इधर वो अटैक कर सकता है इस कार्बन पे. अगर वो इस कार्बन पे अटैक करता तो सेकंड के ऊपर फ्री रेडिकल करेक्टर आ जाता 2 डिग्री. अगर वो इस कार्बन पे अटैक करता, देखो ना दोनों के बीच में दो अनपेयर्ड दो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इससे बॉन्ड कर गया, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया. दिस इज 1 डिग्री. रिमेंबर हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. द 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री. नाउ दिस इज मोर स्टेबल 2 डिग्री. दिस इज 1 डिग्री. दिस इज लेस स्टेबल. फर्दर HBr comes, चेन प्रोपगेशन स्टेप, वो एक H निकाल के 1 ब्रोमोप्रोपेन बना देता है. दैट इज अ मेजर. और Br फ्री रेडिकल बनता है. Br फ्री रेडिकल फिर किसी एल्कीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करना चल पड़ता है. ये भी वही काम करता है. HBr में से H निकाल लेता है, ये वाला H बन जाता है 2 ब्रोमोप्रोपेन Br फ्री रेडिकल, फिर अटैक करने चल पड़ता है. Br free radical attacks this. Last में the chain termination happens. जब एल्कीन खत्म हो जाती है तो बेचारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल एल्कीन पे तो टकरा नहीं सकता है, तो वो अपने आप से ही टकरा के क्या बना देता है? द ब्रोमीन Br2 बना देता है. राइट, दैट इज द एंटी मार्कोनिकॉफ rule. Now question उठता है, why only HBr shows, right, the peroxide effect? Why only HBr? Why not other? Right? The reason is, देखो पहले स्टेज में जो आपके पास से HF, HCl, HBr और HI आता, इनका बॉन्ड मजबूत है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा ही नहीं. क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता ही नहीं. नीचे जाते हुए बॉन्ड वीक होता है तो यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन फ्री रेडिकल बन जाता है. यही था ना बच्चों, हमने जो चेन इनिशिएशन स्टेप किया था उसमें ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाया था. तो वही तो बात कर रहा हूं. अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल आगे
एल्कीन के ऊपर अटैक करते हुए प्रोपोगेशन में जाता है और प्रोडक्ट बनाता है, जबकि जो आयोडाइड फ्री रेडिकल होता है दिस इज बल्कि, बल्कि मायने बड़ा, गोबर, एक मोटा तगड़ा इंसान बैठा ही रहता है, हिलता ही नहीं है, तो वो अपने आपस में टकरा के I2 बना के बाहर हो जाता है। Therefore, only HBr shows the Markovnikov addition. Only HBr, none else. सुनो, मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ा है बच्चों। तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, सुनो, ऐसा है, इसके ऊपर HBr डालता हूं, ठीक, एक सेकंड बेटे, कुछ कारण है, और इसके ऊपर HBr डालता हूं, ये, तो दोनों में एडिशन होगा, फर्क देखिएगा, इसमें ब्रोमीन इधर आए और इसमें ब्रोमीन इधर आए। दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ, दिस इज मार्कोनिकॉफ। अब आप लोगों को बुद्धू बनाने के लिए, राइट, चेक करने के लिए मैं यहाँ पे HCl डालता हूँ ROR के साथ। रिमेंबर, ओनली HBr shows anti-marconicol, no AMA with HCl HI acceptor, only this, ठीक। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में चल रहे हैं बेटे। पहला हमने आपको एडिशन ऑफ HX किया है, सिमेट्रिकल के ऊपर मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ कोई बात ही नहीं आती है। अनसिमेट्रिकल में दो ऑप्शन हो सकती है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। एडिशन ऑफ वाटर will be taken in the next class. We will not do this thing today. इससे हम अगली क्लास में चलने वाले हैं। So what you are going to do is you should make notes, यहाँ तक अपने हाथ से टाइम लेना। I know आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, बट यू नो करना तो पड़ेगा ही थोड़ा थोड़ा, है ना, तो प्लीज डू इट। We will stop here. अगली क्लास में आपको एडिशन ऑफ वाटर, वही दोबारा रिंग एक्सपेंशन दिखाते हुए, ठीक, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, तो मैंने बोला था एल्कीन थोड़ा सा बड़ा होगा, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, यहाँ से चलाते हुए बच्चे तुम्हें आगे ले जाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन विल बी देयर, polymerization reactions that will be discussed, dear friends. So बच्चों, this will be continued in the next class. Alkenes काफी ज्यादा फर्क डालता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको देखने वाले हो। So तब तक जय हिंद, नमस्ते, we'll see you again my dear friends. Good luck, bye bye. Continue with alkenes. Good luck.